بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر اور اس کی برداشت کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جس کی اس دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، حضرت ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے سچے، اچھے اور مشہور پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی طبیعت نہایت ہی حلیم و نیک، صالح اور اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ آپ علیہ السلام کی شادی ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ 10 مسکینوں کو جب تک کھانا نہ کھلا دیتے اس وقت تک خود کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب کوئی نیا کپڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے 10 مسکینوں کو نیا کپڑا پہناتے، اس کے بعد خود نیا کپڑا پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈی، غلام، دولت، عزت اور صالح اولاد اور فرمانبردار بیوی، ہر چیز کی فراوانی تھی۔ آپ علیہ السلام ہر طرح کی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ہر نعمت کی بہت ہی زیادہ قدر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن شیطان نے آپ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب جو اتنی عبادت میں مشغول رہتا ہے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی وجہ اس کا دولت مند ہونا ہے۔ تو نے اس کو خوب ساری دولت عطا کی ہے، ایسا نہ ہوتا تو یہ تیری اتنی عبادت نہیں کرتا جتنی کہ ابھی کرتا ہے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اسے بہکاؤں۔ میرے بہکاوے میں آنے کے بعد یہ تیری اتنی عبادت نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس وقت گیا جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے اپنے طور پر خوب کوشش کی کسی بھی طرح سے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو فریب دے دے، مگر شیطان اپنے ہر وار میں ناکام ہو کر مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت ہے کہ فرشتے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و بندگی دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کی کہ اے اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال و دولت ہونے کی بنا پر وہ تیری بندگی کرتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت اور آرام حاصل ہے، اسی لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ اطاعت اور بندگی دولت کے عوض نہیں ہے، یہ خاص میرے لیے ہی ہے۔ تم یاد رکھو کہ ہر طرح وہ میرا متقی فرمانبردار ہی ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے خود آزمائش اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ پریشانی میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اور بھی زیادہ شکر ادا کروں تاکہ میرا رب مجھے صابروں میں شامل کر لے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے لیے بیماری کی دعا مانگی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اے ایوب، تم مجھ سے صحت اور تندرستی بھی مانگ سکتے تھے، تم نے یہ رنج و بلا کیوں طلب کی؟ جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت ہی بہتر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے تمام بدن میں پھوڑے نمودار ہوئے، اس کے بعد پھوڑے زخم میں تبدیل ہو گئے اور پھر ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ پہلے مال کا نقصان ہوا، اس کے بعد اولاد کی جدائی ہوئی اور تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہی۔ ان کی اولاد مکان گرنے سے ملبے تلے دب کر مر گئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 40,000 بھیڑ بکریاں تھیں، گھوڑے، اونٹ، گائیں، بیل، مویشی جتنے بھی تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ ملازموں نے جب یہ خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دی تو اس وقت وہ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ عبادت سے فارغ ہونے پر ملازموں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ میدان میں جتنی بھی بھیڑ بکریاں تھیں، غیب سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جس کی چیز تھی اسی نے ہی اس کو جلا کر بھسم کر دیا، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ سے عبادت میں مشغول ہو گئے اور چراوے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائیں بیل میدان میں تھے، اچانک ایک آگ آسمان سے نمودار ہوئی اور اس نے ان سب کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شتربان آئے اور آپ کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے بھی ہمارے اونٹ تھے ان سب کو آگ نے جلا دیا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام ان کی بات سنی اور کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے آئے اور بولے کہ اے حضرت ایوب علیہ السلام، ہمارے تمام گھوڑے مر گئے ہیں، ان میں سے ایک گھوڑا بھی زندہ نہیں بچا۔ جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی رب کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے تمام اسباب و اثاثے، گھر، دروازے، فرشتے، چھت
पर्दे सब आग की नज़र हो गए, कुछ भी बाकी ना बचा था। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत इलाही में मशगूल थे। आग के शोले उनके आगे आकर गिर रहे थे और लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत क्या देख रहे हो, अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी जान बच गई है, वही मेरे लिए काफ़ी है। और दूसरे दिन का जिक्र है कि 4 बेटे और 3 बेटियां मौलम के पास पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से मौलम जैसे ही काम से मकतब से बाहर गया, उसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मकतब की छत गिर पड़ी और जब मौलम लौटे उनके सामने मंजर ही कुछ और था। वो लड़के लड़कियां जो जिंदा छोड़कर गए थे, वापस लौटने पर वो लड़के लड़कियां छत तले दबकर मर चुके थे। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की खबर मिली तो वो बोले कि कोई बात नहीं, वो सब शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम के फर्जंद, माल व मता, घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर भी गमगीन होने की बजाय सब्र कर रहे थे और वो अपनी बीवी को भी सब्र करने की तलकीन फरमा रहे थे। एक हफ्ता गुजर जाने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर एक फोड़ा नमूदार हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता फोड़ा ज़ख्म में तब्दील हो गया और उसके बाद वो मामूली फोड़ा फैलते हुए सड़ने लगा। उसमें ताफुन यानी कि बदबू पैदा हो गई थी। तमाम बदन का गोश्त सड़ गया था। गोश्त के सड़ जाने से जिस्म में कीड़े पड़ गए। बदन में कीड़े पड़ जाने से वो और भी ज़्यादा इबादत करने लगे थे। तकलीफ़ और परेशानी के सबब भी उसने कभी भी इबादत में सुस्ती ना की थी। एक ही जगह पड़े रहने से उठने और बैठने, हिलने जुलने की ताकत भी ना रही थी। 4 बरस बीत गए, वो फर्श पर ही पड़े रहे थे। अपने और बेगाने मोहल्ले वाले उनकी इस बीमारी के बिना पर उनसे नफरत करने लगे थे। सब रिश्तेदार उनका साथ छोड़कर चले गए थे। 4 बीवियों में से एक ही बीवी जिसका नाम रहीमा है उसके पास रह गई थी। वो बहुत ही नेक और आबदा खातून थी, हर वक्त अपने शोहर की खिदमत में मसरूफ़ रहती थी। आप अलैहिस्सलाम की बीवी रहीमा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। वो दिल व जान से आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। इनके अलावा लोंडी, गुलाम, नौकर, चाकर एक एक करके सब उनको छोड़कर चले गए थे। बीबी रहीमा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तमाम बदन के ज़ख्म में कीड़े पड़ जाने से आपके ज़ख्मों से बदबू आने लगी थी। वो बदबू मोहल्ले वालों को नागवार गुजरती थी। मोहल्ले वालों की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, हमें डर है कि कहीं ये बीमारी हमें भी अपनी लपेट में लेकर बीमार ना कर दे। ऐसा हो जाने पर हमारी भी यही हालत हो जाएगी जो आपकी है। लिहाजा आप इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और चले जाएं ताकि मोहल्ले के बाकी लोग इस बीमारी से महफूज रहें। मोहल्ले के लोगों की मुखालफत के सबब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो मोहल्ला छोड़कर गाँव से बाहर निकलना पड़ा। बीमारी और मोहल्ले से दूर हो जाने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रोते हुए अल्लाह से फरियाद की कि ए अल्लाह, हमारी सरदारी कहाँ है, दौलत व फर्जंदान, मेरे अजीज़ व अकारब कहाँ हैं? आज मेरे पास कोई नहीं आता। ए अल्लाह, तू मेरा मालिक है, तू ही मुझ पर रहम करने वाला है। मुझ में बीमारी है जिसकी बिना पर गाँव के लोगों ने मुझे गाँव से बाहर कर दिया और इस जगह से भी लोगों को शिकायत है। लोगों की शिकायत पर उस जगह से भी उठाकर तीसरी जगह पर रख दिया गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ऐसी थी कि वहाँ पर रहने वालों को भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वहाँ रहना पसंद ना आया और वो डरते थे कि कहीं ये ख़तरनाक बीमारी उन लोगों को भी ना लग जाए। इसीलिए वो ये चाहते थे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इनके इलाके से भी दूर चले जाएँ ताकि वो भी इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज रह सकें। लिहाजा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 2 शागिर्दों ने मुखालफत बढ़ जाने पर उन्हें एक मैदान में ले जाकर एक दरख्त के साए तले रख दिया। उनके साथ चंद दिन शागिर्द रहे, फिर वो भी अपने घरों को वापस लौट गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अब कुछ भी माल व दौलत ना बचा था जो खाने पीने का सिलसिला जारी रहता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस काबिल ना थे कि मेहनत मजदूरी कर खाने को कुछ लाते। ये जिम्मेदारी अब उसकी बीवी रहीमा ने ले ली थी। वो हर रोज़ मैदान से चली जाती और मोहल्ले में मेहनत व मशक्क़त करती थी। जो मजदूरी से मिलता था उनसे वो खाना लाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मैदान में खिलाती थी और उन्हें जो बाकी वक्त मिलता था उसमें वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी। इसी तरह से ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन का जिक्र है कि बीबी रहीमा मैदान से निकली। इत्तेफाक की बात है कि उस दिन शाम तक उनको कोई काम ना मिल सका। शाम होने पर वो सोच में पड़ गई कि घर खाली हाथ जाने पर वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को क्या खिलाएगी। कुछ सोचकर वो एक काफर औरत के घर गई और उसे अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि ए बीबी, आज मुझे मजदूरी नहीं मिल सकी, मेरे शोहर शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, मुझे उनके खाने के लिए कुछ दे दो ताकि मैं उन्हें खिला दूं और कल जो भी मजदूरी मिलेगी तो मैं उसमें से तुम्हें अदा कर दूंगी।
काफर औरत ने कहा कि मेरे पास कल के लिए कोई काम नहीं है जो मैं तुझे दूं। ये सुनकर बीबी रहीमा उदास हो गई, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद से उनके पास आई थी। उस काफर ने कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई काम तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो फिर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दूंगी। ये सुनकर बीबी रहीमा ने पूछा कि कौन सी बात? तो उस काफर औरत ने कहा कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, काश ऐसे बाल मेरे भी होते। तुम ऐसा करो कि अपने बालों में से थोड़े से बाल काट कर मुझे दे दो, ऐसा करने पर मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगी। काफर औरत की ये बात सुनकर बीबी रहीमा को रोना आ गया और वो काफर को समझाते हुए बोली कि बीबी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा शौहर बीमारी के सबब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो इबादत के लिए उठने की खातिर अपना असह पकड़े। ये मेरे बाल ही है जिसको पकड़कर वो इबादत के लिए उठता है। बीबी रहीमा ने काफर औरत को बहुत समझाया कि वो बाल काट लेने की जिद को छोड़ दे, मगर उस काफर औरत पर उनके बाल काटने का भूत सवार हो चुका था। इसीलिए वो ना मानी और अपनी शर्त पर अड़ी रही। क्योंकि बीबी रहीमा मजबूर थी, काफर उनकी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रही थी। जब काफर किसी सूरत ना मानी तो बीबी रहीमा ने अपने सर के बाल काटकर उस काफर औरत के हवाले कर दिए। इसके बदले उस काफर औरत ने खाने को कुछ दे दिया। वो खाना लेकर बीबी रहीमा अभी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास चल ही पड़ी थी कि शैतान ने बीबी रहीमा के सर के बाल काट जाने का भरपूर फ़ायदा उठाने का सोच लिया था। बीबी रहीमा के वहाँ पहुँचने से पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचकर शैतान ने कहा कि ए अय्यूब, तेरी बीवी आज बदकारी में पकड़ी गई है। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो? मेरी बीवी हरगिज़ ऐसा काम नहीं कर सकती। वो रोज़ाना गाँवों में जाकर मेहनत व मशक्क़त मजदूरी करके मेरे लिए खाने के वास्ते कुछ लाती है। जिस पर शैतान ने कहा कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? जिस पर शैतान ने कहा कि तेरी बीवी को फलानी औरत ने बदकारी में पकड़कर उसके सर के बाल काट दिए हैं। अगर यकीन ना आए तो उसके कटे हुए बाल देख लेना। शैतान की ये बात सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो बेइख्तियार रोने लगे। बीमारी के इस तवील अरसे में भी वो इतना ना रोए थे जितना वो शैतान की बात सुनकर रोए थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनकी बीवी ऐसा काम कर जाएगी। इस हालत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि वो जब भी सेहतमंद होंगे अपनी बीवी को 100 दुर्रे मारेंगे। बाज़ उलमाए मोरखीन ने यह भी लिखा है कि बीबी रहीमा के बाल काटने का कोई सबूत नहीं मिलता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा साबर थे। ये बात उन्होंने अपने इस अमल से साबित करके भी दिखाई। वो मज़ीद भी सब्र कर सकते थे, मगर 18 साल में ऐसा ना हुआ था जो अचानक ऐसा हुआ कि उनके सब्र का पैमाना लबेज हो गया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से 2 कीड़े बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर पड़े थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नज़र जब उन कीड़ों पर पड़ी तो आपने उन दोनों कीड़ों को ज़मीन से उठाकर अपने ज़ख्म पर वापस रख दिया और मुखातब होते हुए फरमाया कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा रज़्क़ अल्लाह पाक ने मेरे जिस्म में रखा है। वो कीड़े ज़ख्म में चले गए, मगर फिर उन्होंने ऐसा काटना शुरू किया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ बर्दाश्त ना हुई थी। 18 सालों में ऐसा कभी ना हुआ था कि कीड़ों से उन्हें इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी हो। उस तकलीफ़ ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पुकारना था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आ पहुँचे और फरमाया कि ए अय्यूब, तुम क्यों रो रहे हो? जिस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस बीमारी में इस तवील अरसे से मुब्तला हूँ। मेरे जिस्म में उस वक्त भी कीड़े थे और आज भी कीड़े हैं, मगर इन कीड़ों ने इतनी तकलीफ़ कभी ना पहुँचाई जितनी कि अब पहुँचा रहे हैं। मुझसे अब इनके काटने की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए मैं फरियाद करने पर मजबूर हो गया हूँ। जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला बेगुनाह किसी को तकलीफ़ नहीं देता। जो उससे जैसा मांगता है वो उसे वैसा ही अता कर देता है। आपने ये मर्ज़ खुद मांगा था, इसीलिए ये ज़ख्म आपको मिले हैं। और जो कीड़े आपके जिस्म से बाहर निकल जाना चाहते थे वो जिस्म से निकल गया था। आपने खुद ही उन कीड़ों को ज़मीन से उठाकर एक मरतबा फिर अपने ज़ख्म पर वापस रख दिया। इसीलिए आपकी तकलीफ़ में ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और सब पर मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की फ़रियाद सुन ली और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से सेहतियाब किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अय्यूब से कहा कि ए हज़रत अय्यूब, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ जा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया है और तुम्हें राहत दे दी है। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कैसे उठ सकता हूँ? मुझ में तो इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊँ।
जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप ऐसा करें कि अपना पाँव ज़मीन पर मारें और फिर देखें अल्लाह की कुदरत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर ज़मीन पर अपना पाँव दे मारा। बस पाँव मारना था कि वहाँ से एक गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस पानी से नहाओ और पानी को पियो। इस पानी की बरकत से अल्लाह ताला आपको शफा देगा और ये बीमारी जाती रहेगी और जो कमज़ोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। उस पानी की बरकत से अल्लाह पाक ने उनको शफा अता की और सेहत के एतबार से वो पहले की तरह हो गए थे और उनकी खूबसूरती में भी इजाफा हो चुका था, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। आप वहाँ से उठकर थोड़ी दूर एक करीब पुल था, उस पर जाकर बैठ गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बीबी रहीमा भी गांव से मेहनत मजदूरी करके लौट आई। वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए कुछ खाने को लाई थी। मैदान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ना पाकर वो हैरान और परेशान हो गई, इस खौफ से कि कहीं कोई भेड़िया ना उसको उठाकर ले गया हो। ये सोचकर वो ज़ारो कतार रोने लग गई। ज़ारो कतार रोता हुआ देखकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि ए बीबी, क्यों रोती हो? क्या तुम्हारी कोई चीज़ गुम हो गई है? जिस पर बीबी रहीमा ने कहा कि इस मैदान में एक बीमार था, उससे तलाश करती हूँ, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? जिस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस बीमार का नाम क्या है और उसकी शक्ल व सूरत कैसी थी? ये सुनकर बीबी रहीमा ने कहा कि बीमार की शक्ल व सूरत जब वो सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप ही की तरह थी, मगर जब वो बीमार हुए तो और उनके जिस्म के गोश्त में कीड़े पड़ गए थे और बीमारी की वजह से वो खासे ज़ईफ़ हो गए थे। ये सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा दिया और फिर कहा कि मेरा ही नाम अय्यूब है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? ये सुनकर बीबी रहीमा की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने आपको पहचान लिया और हैरत ज़दा होकर आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए हज़रत, आप तो बीमार थे, फिर इतनी जल्दी सेहतियाब कैसे हो गए? तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना हाल उनसे बयान कर दिया और चश्मा आब शफा भी दिखाया। इस पर बीबी रहीमा ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और बीबी रहीमा अपने मकान में वापस आ गए और उनके बेटे और बेटियां जो छत तले दबकर मर गए थे वो भी सब जिंदा हो गए। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की घर से जो नेमतें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ले ली थी वो उन्हें सब वापस मिल गई थी। जो बीवियाँ उनके पास से चली गई थी वो सब लौट आई थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमारी की हालत में कसम खाई थी कि जब वो सेहतियाब होंगे तो बीबी रहीमा को 100 दुर्रे मारेंगे। अब उस कसम को पूरा करने का वक्त आ गया था। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुर्रा मारने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और कहने लगे कि ए अय्यूब, तुम्हारी ज़ौजा बीबी रहीमा इस सज़ा की मुस्तहिक नहीं है, वो एक नेक खातून है, उसे तकलीफ मत पहुँचाना। जब तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सब छोड़कर चले गए थे, ऐसे में बीबी रहीमा ही थी जिसने तुम्हारी तेमेदारी की, इसे हकीकी मानू में रफ़ीक हयात जानो। जिस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हकीकत है कि बीबी रहीमा सही मानू में मेरी शरीक हयात है। उसने मेरी बीमारी में जिस तरह मेरा ख्याल रखा वो और किसी ने भी मेरा उस तरह से ख्याल ना रखा, लेकिन क्योंकि मैं कसम खा चुका हूँ उसे पूरा करना भी ज़रूरी है। यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाए और बीबी रहीमा को भी तकलीफ़ ना पहुँचे। जिस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? तो जिब्राइल ने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तुम ऐसा करो कि सीखों का एक मुट्ठा लो जिसमें गंदम के 100 सीख हों, वो उठाकर उसे मार दो। सिर्फ एक बार ही ऐसा करने से तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी और तुम अपनी कसम की बिना पर गुनाहगार भी ना होगे। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और उसकी कसम भी पूरी हो गई और वो गुनाह से भी बच गया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी और ईमान अफरोज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर भाई की ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई की वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।